Another important section is section 25, which is regarding the notice of certain diseases. Now, as you see, the act deals with the safety as well as health. So in case of any disease also which has adverse effect on the health of the persons, there are 8 notified diseases. So if any one of these notified diseases, the person gets contracts any one of these disease, then under the section 25 in form 5, you have to report, give notice of the disease to the concerned authority. Now, where any person employed in a mine contracts any disease notified by the central government, send notice thereof to the chief inspector and to such other authorities in such form and within such time as may be prescribed. Then if any medical practitioner attends, now in this case also notice of disease has also now become the online part. So online we will be submitting the report. We will be discussing in detail. Then if any medical practitioner, this is one important part, if any medical practitioner attends on a person who is or has been employed in a mine or who is or believed by the medical to be suffering from any disease notified, he shall without delay send a report in writing to the chief inspector stating. Now if say for example any person was working with in the mines and then he leaves the employment, after leaving maybe the contract was over, he was a contractual employee and now he is no more, but he suffers from some disease, because these diseases are such that they manifest after a while, after 6 months, after 1 year. That's why you must have seen that within 1 year of the superannuation or retirement you have to again conduct the medical examination. PME जो है एक बार और करनी पड़ती है 1 साल के अंदर अंदर रिटायर होने के, और वो सारे रिकॉर्ड 5 साल तक रखने पड़ते हैं. ये क्यों प्रावधान है? क्योंकि ये देखा गया है कि जो डस्ट और बाकी चीज़ों से, हियरिंग वगैरह से रिलेटेड जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, खास करके डस्ट से होने वाली बीमारी, वो काफ़ी वर्षों के बाद ऊपर उठती है, मैनिफेस्ट होती है. तो उस दृष्टि से आप यह प्रावधान है कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि बाद में तो माइंस में तो जाएगा नहीं क्योंकि माइंस से तो छूट गया, लेकिन वो मेडिकल ऑफिसर, प्राइवेट मेडिकल ऑफिसर जिसके पास भी हो जाता है और उसको अगर ऐसा महसूस होता है कि इस व्यक्ति का डिसीज़ जो है ये नोटिफाइड डिसीज़ में से कोई है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसे वह नोटिस ऑफ डिसीज़ देनी है अंडर दिस सेक्शन. तो क्या लिखना है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, डिसीज फ्रॉम विच ही इज सफरिंग एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द माइन इन विच द पेशेंट वाज लास्ट एम्प्लॉयड. फिर ये जो रिपोर्ट रहेगा, व्हेन द रिपोर्ट एज अबव किसी मेडिकल ऑफिसर ने दिया हुआ, चीफ इंस्पेक्टर शैल पे टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर सच फी, उनकी जो भी फीस हुई हैं और जो भी उनको खर्चा आया होगा वो सारा खर्चा दिया जाएगा, एंड दैट विल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द ओनर ऑफ द माइन. एंड इसमें भी वो अगर मेडिकल ऑफिसर रिपोर्ट नहीं करेगा तो ही शैल बी पनिशेबल विथ ए फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 रुपीज़ दिया हुआ है. नाउ व्हाट आर द नोटिफाइड डिसीजेस कनेक्टेड विथ द माइनिंग ऑपरेशंस और फॉर विच वी नीड टू सेंड द नोटिस under the section 25. So you know that these are the 8 diseases. 8 notified diseases हैं जिसके लिए हमको नोटिस भेजना अनिवार्य है. वो कौन से हैं और किस कारण से होते हैं? पहला उसमें है सिलिकोसिस. सिलिकोसिस ये सिलिका डस्ट की वजह से होता है. फेफड़ों की ही बीमारी है ये, लेकिन सिलिका डस्ट जो अगर किसी भी धातु में अगर सिलिका का परसेंटेज है तो इस सिलिका का परसेंटेज अत्यंत घातक होता है मानवीय शरीर के लिए, उसके लंग्स के लिए. सो सिलिकोसिस इज कॉज ड्यू टू सिलिका डस्ट, सो दैट इज ए नोटिफाइड डिसीज. देन कोल माइनर्स न्यूमोकोनियोसिस, दिस डिसीज manifest due to the inhalation of coal dust. And third disease is asbestosis. As the name suggests, this disease very dangerous disease, and this is caused due to asbestos fiber. Now they say about the asbestos fiber, if a person was working in some asbestos mines, so it is quite likely that after 20 years the disease may manifest. इतना खतरनाक होता है. 20 साल पहले भी काम किया होगा उस खदान में तो 20 साल बाद भी उसे वो बीमारी हो सकती है. देन अनदर फोर्थ वन इज द
कैंसर ऑफ लंग और द स्टमक और द प्लूरा और पेरिटोनियम। नाउ मेसोथेलियोमा कहते हैं इसे, कार्सिजेनिक डस्ट जो होता है कार्सिनोजेनिक, तो वो अगर स्वेलो किया जाए, अभी कई बार हम लोग देखते हैं बहुत सारे वर्कर्स को मुंह से सांस लेने की आदत होती है, तो और या फिर कभी कभी क्या होता है जब आप एक्सर्शन का काम करते हैं, मेहनत का कार्य करते हैं, तो हो सकता है वो आदमी वैसे ही टेंडेंसी है कि वो मुख से श्वास लेता है। तो अगर वहाँ के वातावरण में डस्ट है तो वो डस्ट मुख के जरिए, फूड पाइप के जरिए हमारे स्टमक में जाता है। तो लंग्स का भी कैंसर होता है और स्टमक का भी कैंसर हो सकता है, इन दोनों को। और ये खास करके होता है एस्बेस्टॉस का डस्ट अगर पेट में चला जाए या लंग्स में चला जाए तो एस्बेस्टोसिस तो होता है लेकिन कैंसर भी होता है, जिसे मेसोथेलियोमा कहते हैं। फिर मैग्नीज पॉइजनिंग करके एक और नोटिफाइड डिसीज़ है जो मैग्नीज डस्ट से होता है, लेकिन मैग्नीज पॉइजनिंग दो टाइप की होती है। जो मैग्नीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप होती है उसको इन्होंने, जो नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, उस मैग्नीज पॉइजनिंग को नोटिफाइड डिसीज़ में लिया गया है। इस बीमारी का भी वही है, अगर मैग्नीज माइंस में काम करने वाले लोग अगर वो जहाँ पर फूड ले रहे हैं या तो उन्होंने अपना टिफ़िन जो लाया होगा वो अगर खुले में होगा, ब्लास्टिंग हुई होगी, और डस्ट अगर फाइन डस्ट उनके अनाज में गया होगा, इनको महसूस नहीं हुआ, वो अनाज खा लिया, मतलब किसी भी माध्यम से आप पेट में भी लेते हैं या श्वास से भी आप लेते हैं तो भी नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट हो सकता है। दैट इज़ मैग्नीज पॉइजनिंग। देन अभी जो ये तो पहले 5 थे ही, बाद में 3 डिसीजेस और सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन के बाद ऐड किए गए। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, आपको मालूम ही है कि अभी जैसे जैसे माइनिंग का स्तर बढ़ता जा रहा है एंड बड़ी बड़ी माइंस, बड़ी बड़ी मशीन्स आ रही हैं, तो बहुत डस्ट के साथ में शोर भी बहुत हो रहा है, नॉइज़ भी बहुत हो रहा है। और ये पाया भी गया है कि जो बड़ी बड़ी मैकेनाइज्ड माइंस है, हाईली मैकेनाइज्ड माइंस है, वहाँ के जो HEMM ऑपरेटर्स हैं उनमें ये प्रिवेलेंस देखा गया है। तो नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, this is also one of the diseases which have been notified, and 2 more diseases are contact dermatitis, which is caused by direct contact with chemicals, and lead acid battery और अदर केमिकल्स एक्सेट्रा जो भी होते हैं उसके भी संपर्क में आने से, किसी भी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने से स्किन के ऊपर जो प्रभाव होता है तो उससे भी कार्य के दौरान अर्थात, तो उससे भी नोटिफाइड डिसीज़ में लिया गया है। देन लास्ट वन इज़ द पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, विशेष करके यूरेनियम की जो माइंस होती हैं उसके यूरेनियम के रेडिएशन से यह बीमारी होती है। तो ये 8वीं बीमारी है। नाउ सेक्शन 28, वी नो दैट सेक्शन 28 हैज़ द प्रोविजन दैट नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 6 days इन ए वीक। 6 दिन से ज़्यादा किसी भी वर्कर को, हमको किसी भी एम्प्लॉय को, पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन को कार्य करने नहीं देना है। तो सेक्शन 29 जो है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है, उस परिस्थिति में हो सकता है वीकली डे ऑफ रेस्ट आप न दे पाए। सो इन दैट केस यू हैव टू गिव हिम कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट। नाउ द प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट इज गिवन इन सेक्शन 29. What section 29 reads? If a person can be deprived of his weekly day of rest either under one of the following circumstances. Which are the circumstances? किस परिस्थिति में आप उसे वीकली डे ऑफ रेस्ट से रोक सकते हैं? वो है an emergency involving serious risk to the safety of the minor persons employed therein, or an accident whether actual or apprehended. मीन्स अगर दुर्घटना हो गई तो ठीक है, या दुर्घटना हो सकती है, ऐसा अगर अंदेशा है तब भी आप उसे कॉम्पेंसेटरी दे दें। इन एनी एक्ट ऑफ गॉड, व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड? एक्ट ऑफ गॉड कैन बी earthquake can be act of God, cloud burst can be act of God, all these things which are not in the control of the man. So those are, but they have been given in the mines rules etc. We will look into the, everything has been given. What is emergency, what is urgent work, and all those things have been given. We will discuss it when we look into the mines rules video lectures. Any urgent work to be done to machinery, plant or equipment, and as a result of exemption granted by the central government in exercise of powers conferred by section 83(1). You know, in the section 83(1) there is a provision that any provisions of the act, any particular mine or particular set of persons may be exempted. Now you know
that oil mines are governed under the Mines Act only. So oil mines में वीकली डे ऑफ रेस्ट मिलता है क्या? जो सी शोर में जाते हैं नहीं मिलता है। समुंदर में जो मर्चेंट नेवी में जैसे लोग काम करते हैं, लगातार कंटिन्यूसली काम करते हैं, उसके बाद 2 महीने के लिए जाते हैं, उसके बाद में जो भी है 1 आध महीना या 3-4 महीना वहाँ रहेंगे, 2 महीना इधर रहेंगे, इस टाइप का जो प्रावधान है तो सेक्शन 83 में उसकी प्रोविज़न है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो you can obtain exemption from weekly day of rest, but otherwise not. Then if a person is deprived, अभी अगर आपने किसी व्यक्ति को उपरोक्त कारणों की वजह से वीकली डे ऑफ रेस्ट नहीं दिया है तो उसे आपको कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट विद इन द सेम मंथ देना है और विद इन द नेक्स्ट 2 months, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगले 2 महीनों के अंदर में उसको आप दे सकते हैं, लेकिन उसके और आगे प्रोलॉन्ग करना ठीक नहीं, बिकॉज दिस प्रोविजन हैज़ बीन इंक्लूडेड फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. Nobody is supposed to work continuously, but if there is some emergency, then that is a different issue. But there cannot be emergency which will prolong for months together. So that's why this provision is there. So you have to ensure that he is given compensatory day of rest in the same month or maximum within coming 2 months. If there you don't have any particular manpower, etc., but you have to arrange for that and take steps. That is one thing. Then section 30, hours of work above ground. So we know that the no adult employed above ground in a mine shall be required to work for more than 48 hours in any week. That is the provision. And or more than 9 hours on any day. So this provision is to be kept in mind, because you may expect any question from these figures. 48 है, 9 है. Provided that subject to the previous approval of the chief inspector, daily maximum hours may exceed in order to facilitate the change of shifts. कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन exemption का प्रावधान इसमें लिखा हुआ है. Now the periods of work of any such adult shall be so arranged that along with his interval for rest, they shall not in any day not spread over more than 12 hours above ground, and he shall not work for more than 5 hours continuously for rest of at least half an hour, and not इन एनी डे स्प्रेड ओवर 8 hours वो बिलो ग्राउंड के लिए. अभी इसमें क्या है कि एक प्रावधान इसमें ज़रूर दिया हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को आपको एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं कराना है. तो कई बार सिचुएशन ऐसी रहती थी कि उस व्यक्ति का कार्य 4 घंटे का ही है, 4 घंटे से ज़्यादा उसका कार्य नहीं है. 4 घंटे में दूसरा हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लास्टिंग ही हमारी किसी दिन 4 घंटे चलने वाली है तो डंपर ऑपरेटर 4 घंटे बैठे रहेंगे, उसके बाद जब फेस में कार्य चालू होगा. ऐसी अगर एक सिचुएशन बता रहा हूँ, किसी भी टाइप की ऐसी सिचुएशन अगर पर्टिकुलर जगह में है तो प्रीवियसली देयर वॉज ए प्रोविजन, नाउ ऑल्सो द प्रोविजन इज देयर दैट 12 घंटे का स्प्रेड ओवर में आप उसको पहले बुला सकते हैं कुछ घंटों के लिए, बाद में फिर 4 घंटे के लिए बुला सकते हैं. जैसे सुबह 8 से शाम 8, अगर हमने 12 घंटे पकड़े तो उसको 8 से 12 और 4 से 8 बुलाया जा सकता है. लेकिन अभी जो डंपर्स के कारण जो कुछ दुर्घटनाएं हुई डंपर ऑपरेटर्स को, तो उसमें डंपर ऑपरेशन वालों के लिए वो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन था, तो डंपर ऑपरेटर्स के लिए ये सुविधा हमको नहीं देनी है. इसलिए आपने देखा होगा कि सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी खास करके वो डंपर ऑपरेटर्स के लिए दी हुई है. तो कोई भी डंपर ऑपरेटर एक शिफ्ट में ही करेगा, 8 घंटे ही काम करेगा, और 5 घंटे वाला तो प्रावधान है ही, 5 घंटे के बाद में उसको आधे घंटे का हमें रेस्ट देना है. तो ये हमको ध्यान रखना जरूरी है कि डंपर ऑपरेटर्स को ये हम प्रावधान हमारे लिए अलाउड नहीं है ड्यू टू सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल दैट. देन चीफ इंस्पेक्टर परमिट द स्प्रेड ओवर नॉट एक्सीडिंग 14 hours, वो भी होता है अबव ग्राउंड. अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई तो आप चीफ इंस्पेक्टर से विशेष प्रावधान लेकर, विशेष छूट लेकर उसको 14 hours तक ले सकते हैं. तो इस टाइप का भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैन कम. देन पर्सन्स बिलोंगिंग टू 2 or more shifts shall not be allowed to do work of the same kind above ground at the same time. ये भी इन्होंने बोला है कि आप ये जो स्प्रेड ओवर वाला काम करेंगे, इस स्प्रेड ओवर के कार्य करने के दौरान आप इस तरह से उनका स्टैगर्ड टाइमिंग नहीं करेंगे कि 2 शिफ्ट के लोग एक ही समय में एक ही टाइप का काम कर रहे हैं. सो दैट सुपरविजन की दृष्टि से भी वो है, और हमको समझना भी चाहिए कि कौन सा वर्कर फर्स्ट शिफ्ट वाला है, किस वर्कर के 8 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, ये सारी चीज़ें हैं. तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रावधान उन्होंने इसमें दिया हुआ है.
then not be deemed to be separate, ठीक है. Then section 33 is extra wages for overtime. सेक्शन 33 में ये प्रावधान है कि हमने तो 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसा अर्जेंट कार्य आ जाए जिसमें आपको उस कामगार से, उस पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन से अगर ज़्यादा काम कराना पड़ता है तो अबव ग्राउंड के लिए मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे, ओके, फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक, such overtime work entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate. हम ये जानते हैं कि वो जितना भी इस अनुपात में, जैसे 9 घंटे से ज़्यादा अगर वो करता है अबव ग्राउंड में, तो जितना भी करेगा, 1 घंटा और अगर एक्स्ट्रा वो करेगा तो उसको आपको 2 घंटे के लिए जो है वो ओवर टाइम एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी. और 48 घंटे से ज़्यादा अगर उसका वीकली टोटल काम करने का 48 से ज़्यादा होता है तो जितना भी 48 के ऊपर गया है वो सारा मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस द रेट ऑफ वेजेस वो आपको देना पड़ेगा. यहाँ हमें समझना होगा, एक दिन में 9 घंटे से अधिक भी लिखा है और सप्ताह में 48 घंटों से अधिक भी लिखा है. इसका अर्थ ये है, अगर कोई मालिक किसी कामगार से पूरे सप्ताह के 6 दिन 9-9 घंटे काम करवाता है, 9 से अधिक नहीं करवाता है, तो कुल घंटे होते हैं 54. तो 48 के हिसाब से वह कामगार 6 घंटों की ओवर टाइम के लिए एंटाइटल्ड होगा. सो दिस इज द पर्पस बिहाइंड दिस रूल्स, मीन्स keeping the restriction of 9 hours as well as 48 hours also. Now let us take one example. It may appear in the examination, let us assume it. In a week, a person works for 9 hours on 3 days and for 7 hours on 3 days. He will be entitled to overtime wages for, the options are 3 hours, 27 hours, 21 hours, 48 hours and none. Now how we will calculate? We will go by the formula 9 3s are 3 days into 9 27, 7 into 3 21, so it becomes 48. So the option should be none because he is not entitled. Then another, in some of the mines they are still having the piece rate system. Now in this piece rate system, the act says, as per the section 33, the act says that during the previous week, whatever the average earning that piece rate worker had earned, so that will be taken as his ordinary rate of wages, and for calculating the purpose of overtime it will be doubled. Now let us take one more example here. The example is, a piece rated worker earned a total wages of rupees 4,800 in preceding week. His overtime wages per hour would be, now if we divide this 4,800 total wages into 6, it becomes 800 per day. So if it is after considering 8 hours work, it becomes 100 rupees per hour. So the overtime wages per hour they have asked, it will be 200, but we don't find the option over here. So we should be very quickly able to go for the option none of these. Then one more criteria they have given in the act. It is, if that person has not worked in the preceding, maybe he was absent or he was on leave, etc., etc. So average for the day he had worked in the same week, excluding the overtime, or on the daily average of his earnings in any preceding, whichever is higher. So that will be considered, means the worker should get more benefits. That is the criteria behind this. Then prohibition of employment of certain persons. This is one section 34, wherein you can expect a question. No person shall be required or allowed to work in a mine if he has already been working in any other mine within the preceding 12 hours. नाउ एट टाइम्स हमारे मन में आ सकता है कि ऐसी कैसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमने ये चीज़ महसूस किया है, ये चीज़ हमने देखी है. अब ऐसा हुआ था कि एक माइंस, 2 माइंस करीब करीब थी और एक कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनका दोनों माइंस में कार्य चलता था. अब दूसरी माइंस में, पड़ोस की माइंस में, इस कॉन्ट्रैक्टर का एक्सकेवेटर ऑपरेटर नहीं आया था.
और उसको फर्स्ट शिफ्ट में वहाँ एक्सकेवेटर ऑपरेटर की ज़रूरत थी। तो इस बंदे ने, इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, दोनों माइंस नज़दीकी थी, तो उस माइंस का जो एक्सकेवेटर ऑपरेटर था जिसने रात में सेकंड शिफ्ट की थी रात को 11 बजे तक, उसको सुबह 7 बजे से अर्जेंट में एक ट्रांसफ़र लेटर बना करके उसको भेज दिया। हो सकता है कोई इंस्पेक्शन होने वाला हो, कोई ज़रूरी काम हो, जो भी कुछ इमरजेंसी, कुछ समझ लीजिए जो भी आ गया हो। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वीटी ट्रेंड है, ऑलरेडी मेडिकली एग्जामिन्ड है, ऑलरेडी पड़ोस की माइंस में कार्यरत है, इसलिए उसको आप तुरंत प्रभाव से तो ले सकते हैं कार्य पर, लेकिन ये जो सेक्शन 34 दिया हुआ है इसका उससे उल्लंघन होता है। सो सच सिचुएशन मे अराइज, सो देयर शुड बी एटलीस्ट ए गैप ऑफ 12 hours that is given there. Then limitations of daily hours of work including overtime work, this is also there, because you know these restrictions have been imposed as per the recommendations of the ILO, International Labour Organization, because it works for the in the interest of the workers. And as you know that weekly day of rest to the workers was also at the behest of the International Labour Organization only. So in this case they have of course mentioned that unless there is an emergency in respect of cases failing within clause A and clause E of section 39. Now what is that clause A and clause E? An emergency, an accident, an act of God, or any urgent work to be done to machinery, plant or equipment, no person employed in a mine shall be required or allowed to work in the mine for more than 10 hours in any day inclusive of overtime. Why this has been mentioned? Because the work in the mines is, one thing is that it is of hazardous nature, second thing is that it is definitely laborious and having adverse effect on the health of the persons. So that's why there is a restriction that no person can work for more than 10 hours in a day even if he is being paid overtime. That is one restriction. Now of course इसमें यही बात होती है कि आप अगर दोनों चीज़ों में इसमें बात आ जाती है। देखिए, उसको 10 घंटे से ज़्यादा आप अगर नहीं कराते हैं, ऐसा मान के चलिए कि कोई अगर मालिक ने, ऐसी एक सिचुएशन आती है कि सप्ताह के 2 दिन 11 घंटे काम करवा लिया जाए और 2 घंटे 9 घंटे काम करवा लिया जाए, ठीक है, और 2 दिन जो है 4 घंटे काम करवा लिया जाए। एक ऐसा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो 6 दिनों का बंटवारा ऐसा हुआ कि 2 दिन उसने 11 आवर्स पर डे के हिसाब से काम किया, तो इट बिकम्स 22। फॉर 2 days ही वॉज डिप्लॉयड फॉर वर्किंग फॉर 9 आवर्स, so this becomes 18, so 22 plus 18 it becomes 40, and for 2 days that worker was asked to given a half day only, means 4 hours, so total becomes 48 in a week. So in such situation that worker will be entitled for, means although it is 48 hours is there, but still means in that case the 10 hours criteria has been exceeded, and provided it is a emergency or such type of situation, so in such cases only this will be allowed. So this way, if you while trying to learn and trying to understand the various provisions in the act, इस टाइप का अगर आप मन में थोड़ी सी कल्पना बिठा लेंगे तो आपको वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसमें और एक बात होती है कि जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए देयर आर means several exemptions are there, means supervisory staff has been exempted from the provisions of certain provisions. So which are those provisions? ये आपको बहुत अच्छी तरह बार बार पढ़ के याद कर लेना होगा कि 28 बोलेंगे तो वीकली डे ऑफ रेस्ट है, 29 है तो कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट है, इस टाइप का हमको ध्यान रखना है। तो अभी जैसा हम देखते हैं दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 28 वीकली डे ऑफ रेस्ट है, सेक्शन 30 जो है एंड 31 आवर्स ऑफ वर्क, 30 में अबव ग्राउंड के, 31 में बिलो ग्राउंड के दिए। 34 जो है वो अभी जो हमने जिक्र किया कि बाजू की माइंस में था, और 12 आवर्स के गैप के सिवा वो दूसरी माइंस में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। देन एक और है सेक्शन 36 सब सेक्शन 5। सो इसमें ये दिया हुआ है कि हम लोग जो भी सेट ऑफ रिले वर्कर को जिस भी टाइमिंग में लगाने वाले हैं, जिस भी शिफ्ट में लगाने वाले हैं, उसका एक डिस्प्ले किया जाता है
और उस दिए हुए टाइमिंग और रिले के अलावा वो अन्य इसमें कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए ये सारे कानून लागू नहीं होते। शैल नॉट अप्लाई टू दी पर्सन्स होल्डिंग पोस्ट ऑफ पोजीशन ऑफ सुपरविजन। अब इसमें सुपरविजन में कौन आता है? अब सुपरविजन में कौन आता है ये हमको जानने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा रूल 46। हालांकि माइंस रूल्स अलग से हम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात आ गई एग्जाम्शन की तो एक नज़र हम डाल लेते हैं कि 46 जो है रूल 46 ऑफ द माइंस रूल्स वो क्या कहता है। रूल्स 46 में जो दिए हुए हैं सुपर पर्सन्स होल्डिंग द पोजीशन ऑफ सुपरविजन, उसमें मैनेजर है, अंडरग्राउंड मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, वेंटिलेशन ऑफिसर है, सेफ्टी ऑफिसर है, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर दिया हुआ है, ओवरमन, फोरमन, सरदार, माइनिंग मेट, ये जो है ये सारे आते हैं सुपरविजन में। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फोरमन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, सर्वेयर एंड असिस्टेंट सर्वेयर, मेडिकल ऑफिसर, केमिस्ट, असेयर, मेटलर्जिस्ट, वेलफेयर और पर्सनल ऑफिसर एंड एनी अदर पर्सन हु ऑन द इन द ओपिनियन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट। तो इन लोगों को ये सारे जो प्रावधान हैं वीकली डे ऑफ रेस्ट के या CDR के, जिसे हम कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट कहते हैं, और फिर मोर देन 9 आवर्स एंड ऑल दैट, सो ये इनको लागू नहीं होते हैं। सेक्शन 38 भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि इमरजेंसी की बात उन्होंने जो बताई हुई है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी इन्वॉल्विंग सीरियस रिस्क टू द सेफ्टी ऑफ द माइन, जैसे एक्सीडेंट हो जाए, या तो एक्सीडेंट हो गया हो या हो सकता है कि बहुत बड़े एक्सीडेंट की संभावना होगी अगर वो कार्य हम पूरा नहीं करते, तो उसे कहते हैं एप्रीहेंडेड। या फिर जैसे एक्ट ऑफ गॉड की बात हमने पहले भी देखी थी। एक्ट ऑफ गॉड मतलब भूकंप हो जाए या कोई बादल फट जाए या इस टाइप का कुछ महाप्रलय अगर हो जाए तो उसे एक्ट ऑफ गॉड में लिया हुआ है। या किसी मशीनरी को हमें अर्जेंट वर्क कराना है, तो ये सारे चीज़ें इमरजेंसी में दी गई है। तो लेकिन इसमें सिर्फ हमको एक ध्यान रखना है कि उस खदान में सेक्शन 22 या सेक्शन 22A लागू न हो। मतलब अगर इंस्पेक्टर ने इफ ही हैज़ इशूड ए नोटिस एंड द एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, देन इन दैट केस इट इज़ इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू अलाउ वर्क इन दैट। सो इन दैट केस ऐसी अगर कुछ आती है तो ये जो हमने बात किया 28 सेक्शन 28 सेक्शन 30 सेक्शन 31 आवर्स ऑफ वर्क बिलो ग्राउंड अबव ग्राउंड एंड टू प्रोटेक्ट 36 टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ द माइन और ऑफ द पर्सन्स, इतना हमको ध्यान रखना जरूरी है। फिर और एक बात इसमें हमको छूट दी हुई है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्शन का अचानक डिमांड हो जाती है या बहुत ज़रूरी होता है, या हो सकता है कि प्रीवियस डेज़ में कुछ प्रोडक्शन की उत्पादन की कमी हुई हो और हमको प्रोडक्शन की दृष्टि से भी अगर करना है तो उसमें भी इसमें छूट का प्रावधान दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट एनी अर्जेंट वर्क टू बी डन टू मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट, मैनेजर मे टेक द एक्शन परमिटेड बाय दिस सेक्शन। प्रोडक्शन ऑफ मिनरल वुड देयर बाय बी इंसिडेंटली अफेक्टेड, बट एनी एक्शन सो टेकन शैल नॉट एक्सीड द लिमिट्स नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग सीरियस इंटरफियरेंस ऑर्डिनरी वर्किंग ऑफ द माइन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको अगर समझ लीजिए उस मशीनरी को ब्रेकडाउन में लेना है, या ब्रेकडाउन नहीं सॉरी, उसको अगर मेंटेनेंस में लेना है किसी मशीनरी को, तो मेंटेनेंस में लेने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ताकि अपना प्रोडक्शन का भी फ्लो बना रहे, तो हम सोचते हैं कि एक काम करो, इसको कंटिन्यूस थोड़ा सा ज़्यादा देर तक काम करा लो और उसके बाद में अपन उसको मेंटेन। तो इस टाइप का अगर कोई कार्य है तो उसके लिए भी छूट दिए, लेकिन द प्रोविजन सेज दैट एवरी सच केस शैल बी रिकॉर्डेड टुगेदर विद द सर्कमस्टांसेस एंड ए रिपोर्ट देयर ऑफ शैल बी मेड टू द चीफ इंस्पेक्टर और द इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को उसकी जानकारी हमको देनी है। नाउ सेक्शन 39 पावर टू मेक एग्जम्प्टिंग रूल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी परिस्थिति में कुछ रूल्स समय के ऊपर बनाने पड़ सकते हैं, तो केंद्र सरकार जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दे मे मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर द एग्जम्पशन to such extent in such circumstances and subject to such conditions I am specified from the provisions of section 28, 30, 31, 34 इस टाइप का हो सकता है। तो अगर मतलब ये रूल्स की बात इसलिए आती है कि अगर कभी एक आध कोई कार्य लंबे समय तक चलने वाला हो
तो उस केस में ऐसे एग्जम्प्टिंग रूल्स बनाए जा सकते हैं। कभी एक्सप्लोजन हो जाए और उस एक्सप्लोजन का हमको रिकवरी करनी है और सारी चीज़ें करनी है, दिया हुआ है उन्होंने, इसमें भी हमको माइंस रूल्स देखना पड़ेगा कि ये जो एग्जम्पशन दिया हुआ है वो इमरजेंसी के लिए दिया गया है। तो इमरजेंसी में क्या क्या आता है, माइंस रूल्स को अगर आप देखेंगे 4th शेड्यूल कॉलम 1 में, which are the works which will be considered as emergency. So they have given an explosion or ignition of gas, spontaneous heating or outbreak of fire, influx of noxious gas, eruption of water, premature collapse of any part of mine, power failure of power supply. So ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो सेक्शन 39 में they have made a provision wherein persons can be employed up to 12 hours on any day and up to 66 hours in each period of 7 consecutive days. So because you will not be giving them compensatory day of rest, so you can allow them to be work up to 12 hours on any day, but provided during that week the total means for 7 days. So every day if you make them work for 12 hours, then it becomes 12 7 84, so that won't be allowed. The 66 hours maximum period will be allowed, that is in the emergency जो हमने ऊपर देखी है। अर्जेंट वर्क भी उसमें एक दिया हुआ है, अर्जेंट वर्क भी कभी आ जाए तो इस प्रकार का प्रावधान आप लगा सकते हैं। अर्जेंट वर्क में जो दिया गया है उसमें इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्चुअल और एप्रीहेंडेड, क्लियरिंग ऑफ फॉल्स ऑफ ग्राउंड, क्योंकि कई बार अंडरग्राउंड माइंस में ऐसा हो सकता है कि इफ़ यू डोंट क्लियर द फॉल then it would seriously impede the ventilation of the mine. So other means gas का ये हो जाएगा, उसमें accumulation हो जाएगा and it will be further pose a greater danger. So in that case then erection or withdrawal of supports. So this is also one of the important works in underground mines, or at times for completion of blasting operation. At times it is also there, you cannot leave the explosive over there and it will be again more dangerous. So in that case you can make use of these provision, that more than up to 12 hours and all that. Then in case of breakdown of any machinery, plant or equipment in mines involving repairs, renewals or alteration to avoid stoppage of normal mining operation, this is also required to be done at times. Then for work of preparatory or complementary nature, 3 types of things they have mentioned herein. Those 3 are, one is emergency and another one is urgent work, and third one is work of preparatory or complementary nature. So इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है अगर अंडरग्राउंड की बात करें तो रिपेयर्स ऑफ शाफ्ट्स, रोडवेज और हॉलेज ट्रैक, and arranging for ventilation, these are underground. Then fitting or shifting of pump, underground के लिए भी लागू है, open cast के लिए भी लागू है. Persons may be allowed to work up to 10 hours on any day. So this is a exemption as per the section 39. Then for operation of continuously operated machinery including widening engines, a person can be allowed to. Now hot seat exchange you may be knowing, in many mines this is adopted. So in that case exemption, provision for exemption under section 39 is there. So a person can be allowed to work the whole or part of the subsequent shift only if the person succeeding him fails to work or fails to report. उसको हो सकता है 8 और 8 16 घंटा भी करना पड़ सकता है। अब परीक्षा की दृष्टि से एक और सेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है एक्ट का, सेक्शन 46 एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। आप जानते हैं कि नाउ दिस सेक्शन हैज़ बीन सुपरसीडेड बाय अनदर गेजेट नोटिफिकेशन. In 2019 this notification was issued, and by that notification a woman may deploy, the owner agent manager may deploy women between 7 p.m. and 6 a.m. Formerly it was not allowed in the mine above ground, including open cast working, but there are certain conditions. What are those conditions? The condition is after obtaining written consent of the concerned woman. This is one thing. Provide adequate facilities and safeguards regarding occupational safety, security and health. दिस इज़ सेकंड कंडीशन. आपको उनसे रिटर्न कंसेंट लेना है महिलाओं से. दूसरी बात ये है कि उनकी सेफ्टी भी और सिक्योरिटी भी, आप दोनों चीज़ें समझते हैं, और स्वास्थ्य पर भी उनके विपरीत परिणाम नहीं होना चाहिए. एंड एक एसओपी भी है, वो एसओपी को भी हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये जो महिलाओं को हम लगाएंगे, ये महिलाएं
ग्रुप ऑफ 3 होनी चाहिए, हैं 3 से कम महिलाओं को हम आप नहीं लगा सकते। नाउ वी शैल लुक इनटू द SOP फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो, as women have been permitted to work above ground in open cast as well as in underground mines also, so this SOP assumes importance, because as a manager you will have to look after that angle also. Now in this SOP, the different things they have mentioned. First is about the infrastructure. In this infrastructure you have to provide separate washrooms, and creche room should be there. If the woman whom you have employed, if they are having children below the age of 6 years, then you need to have a creche room, and female guards should be there. CCTV surveillance is must, and a female nurse is also to be deployed. And the transportation of women, this is very very important, that is the responsibility of the owner. And as per the SOP conditions, you need to have CCTV GPS surveillance, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है, तो GPS एनेबल्ड व्हीकल उन महिलाओं के लिए आपको देना है। देन B इज स्पेसिफाइड जॉब्स एंड लोकेशंस। सो व्हाइल डिप्लॉइंग द वुमेन as per the exemption that we have received under the section 46, you have to deploy them on jobs which are suitable for the women. That also you need to look into it. And the third part in the SOP is about the administration. In this administration part, you have to have a internal complaint committee, ICC बोलते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इस SOP को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। दिस हैज़ बिन सर्कुलेटेड बाय द DGMS ऑल्सो। सो अभी तो हम इसके जो सैलिएंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी जिम्मेदारी ओनर एजेंट मैनेजर की, और उस जिम्मेदारी के अंतर्गत you have to have a arrangement or system wherein sexual harassment at the workplace, how it is to be notified, and you must have a internal complaint committee, etc., that is mentioned there. Then you have to give relaxation to pregnant and lactating women, and also during their monthly menstruation period. So that is also to safeguard the health and other things of the women. And about the most important part in the SOP is the duties and responsibilities of the owner. Whenever it comes that it is the duties and responsibility of owner, तो इसको समझ जाइए कि ये काफ़ी गंभीर मामला है। सीधे ओनर को जिम्मेदारी दी गई है, इसका मतलब that thing is to be viewed very seriously. So that is the owner's responsibility, or even nominated owner can do this job, no doubt about that. Owner or nominated owner is one and the same thing. So constitution of internal complaint committee is the responsibility of owner. Then creating enabling work environment. The environment over there should be conducive for the women to work and respect dignity of women. That is the responsibility of the owner, and deployment as per the guidelines, whatever guidelines have been issued. Then F is about the inspection schedule also. This is one of the important areas whenever you deploy women. Checklist should be prepared that during the inspection schedule, what is to be inspected, what is to be seen, all those things, infrastructure, washroom, etc., and all those things are given or not, CCTV surveillance is there or not, GPS enabled, and all those things. So checklist needs to be prepared. Then inspection is to be done, and a fortnightly report is to be submitted to the regional inspector. So deploying a woman means all these things are to be observed. Then feedback and revision for effectiveness, this is also mentioned over there. Means those women employees, we need to have a system wherein you will be taking a feedback from them whether whatever arrangements we have provided, those arrangements are satisfactory or not. And risk assessment in case of change in working conditions, that is also to be done. When we do risk assessment, so you have to ensure that this particular job wherein we are deploying women, it won't have adverse effect on the health of the women we are deploying. Section 57
powers of central government to make regulations. So you know that under the act, the central government has been empowered to make rules and regulations and all that. So as under the section 57, it is for making the regulations. Under the section 58, it is the power of central government to make rules. Actually in this section they have elaborately given the regulations will be made in respect of the following. So वो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें वही सारे हैं जो हमारे चैप्टर्स रेगुलेशंस में आ जाते हैं, इसलिए हम अभी उसमें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो रेगुलेशंस को बड़े थॉरोली करने वाले हैं। वैसा ही रूल्स के लिए सेक्शन 58 रूल्स, तो इस रूल्स में भी क्या क्या रहेगा, तो वो भी रूल्स के पूरे चैप्टर्स में जो जो लगभग आता है वो सारा चीज़ एक्ट में दिया हुआ है। सो वी विल नॉट गो थ्रू इट नाउ, बिकॉज माइंस रूल्स भी हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले। अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 61, सेक्शन 61, दैट इज रिगार्डिंग बाय लॉज। अब बाय लॉज को थोड़ा सा अच्छे से हम लोगों ने समझना चाहिए, क्योंकि बाय लॉज का ऐसा है कि आइदर ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, मीन्स ओनर खुद ही अगर चाहेगा कि मुझे एक सेपरेट बाय लॉज बनाने हैं। देखिए क्या होता है, जो माइंस एक्ट रेगुलेशंस एंड रूल्स बने हुए होते हैं तो ये सारी हिंदुस्तान को लागू होते हैं। अब कई बार मोटा मोटी तो ये ऐसा पूरी चीज़ों को देख करके बनाया गया है। देखिए हर प्रांत के लिए अलग अलग रूल्स बनाना तो उतना संभव नहीं होगा, वो तो काफ़ी कठिन हो जाएगा। हालांकि फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंतर्गत फैक्ट्रीज रूल्स हर स्टेट के अलग अलग बने हुए हैं, वो बात निराली है। लेकिन माइनिंग का जहाँ तक सवाल है तो माइनिंग में ऐसा नहीं है, एक ही माइंस रूल्स है विच एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट। सो कभी कभी लोकल सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती है, तो ऐसे केस में अगर किसी विशिष्ट ग्रुप के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीज माइंस के लिए कोई अगर विशिष्ट सेट हो, ये या फिर कोई कार्य जैसे लोकोमोटिव यूज़ करना हो, उसके लिए कोई हमको सेपरेट सेट ऑफ रूल्स बनाने हो जो कि उस पर्टिकुलर माइन को ही लागू रहेंगे या ग्रुप ऑफ माइंस के लिए लागू रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान की सभी खानों को लागू नहीं होंगे, उस केस में बाय लॉज बनाने का प्रावधान दिया हुआ है। सो दिस बाय लॉज कैन बी framed by the owner on his own initiative, owner agent manager, or the chief inspector or an inspector may ask them to frame bylaws and submit them to the chief inspector. Now after when the chief inspector or inspector asks him to submit bylaws and all that, if the draft bylaws are not submitted within 2 months, it is quite possible that the owner may not, he may hesitate and he may not submit. So it is likely, or even if he submits and if they are not sufficient, okay, considered insufficient, we can say. So in that case the chief inspector or the inspector may himself propose draft bylaws and send them to the owner, agent or manager for consideration. Then if the owner, agent or manager and chief inspector are unable to agree, so here the committee comes into picture. बायलॉज बनाने के लिए चीफ इंस्पेक्टर ने बोला था, उन्होंने बना करके भेज दिए, चीफ इंस्पेक्टर को पर्याप्त नहीं लगे, उन्होंने वापस फिर से कुछ उसमें संशोधन करके उनके तरफ वापस भेजा, और ओनर कहता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए जो भी कारण हो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इफ़ दे डोंट एग्री देन इन दैट केस ड्राफ्ट बायलॉज, सो अगर द चीफ इंस्पेक्टर और नो एज द टर्म्स ऑफ द ड्राफ्ट बायलॉज विद इन 2 months, okay, the chief inspector shall refer them to the committee constituted under section 12(1) for settlement. So then this is one pravdhan. And when the owner, agent or manager and chief inspector have agreed to the draft bylaws, chief inspector or the inspector shall send a copy to the central government for approval, and the government may make such modifications in the draft bylaws as it thinks fit. Then before approving the draft bylaws, the government shall publish them, set a time of at least 30 days within which objections may be sent to the government. The government shall consider the objections and approve the bylaws with or without any amendments. अभी इसमें हमने bylaws में 2-3 जगह देखा कि 2 months का पीरियड आया, 30 days का पीरियड आया. Now these can become a question for our MCQ examination, तो उसको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. यानी चीफ इंस्पेक्टर उस ओनर को बोलेगा कि आप 2 महीने के मतलब आप बनाइए, अगर 2 महीने तक नहीं बनाता है, within 2 months he is unable to, then in that case draft bylaws will be framed by the chief inspector and sent to them. After sending to them, if they don't agree,
So within 2 months period they have to, the bylaws will be referred to the, or the case will be referred to the committee for consideration. And when जब एग्री दोनों हो जाएंगे तो दोनों एग्री होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर अप्रूवल, एंड उसका पब्लिसिटी की जाएगी, मतलब उसको सर्कुलेट किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे, दोज हु आर स्टेक होल्डर्स, and 30 days time will be given, and after that those will be applicable and all that. Now the bylaws, ऐसे जो bylaws बनते, they shall have effect as if enacted in this act. मतलब ये जो बायलॉज इस तरीके से बनाए जाएंगे उनको उतना ही सम्मान दिया जाएगा जैसे कि वो एक्ट के तहत बनाए गए हो. दी बायलॉज सो मेड शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज इन द केस ऑफ रेगुलेशंस एंड रूल्स. एंड अभी एक बात इसमें हमको ध्यान रखनी जरूरी है कि एवरी रेगुलेशन, रूल एंड बायलॉज made under the act is required to be laid before each house of parliament for a minimum period of 30 days so that interested members can see them. This is given in section 61A. तो दोनों हाउस जो है, अपर हाउस लोअर हाउस, उनके सामने 30 डेज के लिए रखना है. ये आपको मिलेगा काय के बारे में? रेगुलेशन, रूल्स एंड बायलॉज. एक्ट के लिए ऐसी कोई भी 30 डेज की लिमिट नहीं है, वो जितने भी दिन जब भी उनको समय मिले तो तब वो कर सकते हैं. लेकिन रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज के लिए एटलीस्ट 30 डेज तक आपको रखना जरूरी है. देन नॉर्मली जो देखा गया है कि ये जो रेगुलेशन, रूल्स एंड बायलॉज होते हैं इसका पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता है. जैसा एक्ट के लिए हमने पूरी सिस्टम देखी थी वैसा इसके लिए लागू नहीं होता है. लेकिन कोई मेंबर अगर चाहता है या कोई विशिष्ट प्रावधान उसमें का ऐसा हो तो दैट कैन बी टेकन अप फॉर डिस्कशन. एंड पार्लियामेंट को ये पावर निश्चित ही है कि उसकी कोई भी प्रावधान या पूरे प्रावधान को वो मतलब खारिज कर सकता है. सेक्शन 62 आप जानते ही हैं. when you are working in the mines, the posting of abstracts from act, regulations, etc. At every mine office you will see that the abstract of the mines act, regulations and all bylaws and etc. they are posted on the notice board. So there shall be kept posted up at or near every mine in English and in such other language or languages the abstracts of the act, regulations and rules. Then next is very important, that is penalties and procedures. So here also you can expect a question or two, because now the Mines Act 1952 is applicable. So in these we see that there are certain provisions given. For example, obstructing an inspector in execution of his duties, so there is imprisonment 3 months, fine rupees 500, refusing to produce any documents, so fine rupees 300, and falsification of records, then use of false certificate of fitness, omission to furnish any plan, contravention of provisions regarding employment of labor. So all these things one needs to go through. और इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें हम ये पाते हैं कि यहाँ पर कई जगह जो है जो सेक्शन 22 और सेक्शन 22A की बात अगर करें तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 22 और 22A इज़ व्यूड वेरी सीरियसली एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years and fine rupees 5,000. So this way, this is the maximum punishment. So you can expect a question, what is the maximum punishment under the Mines Act 1952. सो ये हमको कभी कभी इस टाइप से काम में आ सकता है. अभी हर ओनर एजेंट मैनेजर को मैनेजर भी अपॉइंट करना है, उसके लिए भी अगर नहीं कर सकता है, मैनेजर नहीं करता है अपॉइंट वो, तो उसमें भी प्रावधान इसमें दिया हुआ है. तो अब एक सबसे हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि अगर जो हमने बात किया कि मैक्सिमम पेनल्टी इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years एंड फाइन रुपीज़ 5,000. सो नाउ अब ये बात छोड़ दीजिए कि आने वाले दिनों में इसको प्रपोजल बीच में आया था कि इसको 100 times बढ़ाया जाए, बट आज की तारीख में बढ़ा हुआ नहीं है, वो अभी लागू हुआ नहीं है आज तक. तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लाइफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने माइंस एक्ट का फॉलो नहीं किया है और दुर्घटना होती है और जिसमें किसी की जान जाती है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन रुपीज़ 5,000, और बोथ हो तो प्रावधान दोनों में दिया ही हुआ है. उसी प्रकार अगर किसी को सीरियस बॉडी इंजरी हो जाए तो उसमें भी 1 साल का इम्प्रिजनमेंट है, 3,000 रुपया फाइन है. अदर इंजरी के लिए 3 months इम्प्रिजनमेंट और फाइन रुपीज़ 3,000. इफ़ कन्विक्टेड फॉर ए सेकेंड टाइम अंडर दिस सेक्शन, अगर बार ऐसा होता है, दोबारा ऐसा होता है, तो जो भी पनिशमेंट दी गई है उसकी दुगुना उसको दी जाएगी. तो इस प्रकार का इसमें कुछ प्रावधान है. तो
तो ये पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स भी हमने एक नज़र मार लेना चाहिए। अब जो सेक्शन 83 दिया हुआ है, इस सेक्शन 83 में पावर टू एग्जम्प्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एक्ट, रेगुलेशन एक्सेट्रा, क्योंकि जैसा कई बार कुछ पर्टिकुलर परिस्थिति ऐसी निर्माण हो सकती है कि जिस परिस्थिति के अंतर्गत हमें कुछ माइंस एक्ट के प्रावधान लागू करना थोड़ा सा कठिन जाता हो, मुश्किल जाता हो, तो ऐसे इसमें सेक्शन 83 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट एनी माइन फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रेगुलेशंस, रूल्स और बायलॉज। ए लार्ज नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस, इस एग्जम्पशन के काफ़ी नोटिफिकेशंस केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। तो उसका एक अगर हम थोड़ा सा उदाहरण के लिए लें कि किस प्रकार के एग्जम्पशंस दिए हुए हैं, तो उसमें कुछ उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे कि कोल वॉशरीज एंड कोक प्लांट्स जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द माइंस आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। बट ये हमको ध्यान रखना होगा कि माइंस एक्ट के प्रोविजन से उसको जरूर बरी किया है, लेकिन दे आर गवर्न अंडर दी फैक्ट्रीज एक्ट. So Factories Act is also very much stringent about the health and safety of the persons, but that is different thing, but they have been exempted from the Mines Act. Then Neyveli Lignite Corporation जो उसका भी कुछ ब्रिकेटिंग एंड कार्बोनाइजिंग प्लांट है, और स्टोन क्रशिंग प्लांट जो ग्रेटर बॉम्बे के हैं उनको भी एग्जम्प्ट किया था, उसका भी नोटिफिकेशन निकला था. फिर आप जानते हैं कि लोडिंग ऑफ रेलवे वैगन्स, तो अभी सेक्शन 36 के अंतर्गत हम लोगों को ये देना पड़ता है कि कौन से रिले में किस टाइमिंग में हमारे कामगार काम करेंगे. लेकिन एज फार एज द लोडिंग ऑफ रेलवे वैगन्स इज कंसर्न, वी डोंट नो एट व्हाट टाइम द रेलवे वैगन्स विल बी सप्लाइड. सो फॉर दैट exemption has been granted. Then women employed in open cast mines, now this doesn't keep any meaning, this exemption, because now the new notification has come. Then certain cases, the attendance of the boiler houses where steam winders are there, so though that steam winder boiler operator, he may be required to work continuously, and after 5 hours you may not be able to give him a rest, or you may not be in a position to give him weekly day of rest, compensatory day of rest. So all those things have been exempted. So these are some of the exemptions given under the section 83. Then one more exemption under section 83 is regarding the welfare services. So pithead baths, canteen creche, in issuing foodstuff, hospital and dispensaries, etc. Now in a hospital or dispensary, again the same thing comes. You cannot specify at which timing any emergency will come, so they are exempted from those things. But of course there also you have to take care, ensure that they don't work for more than 48 hours, they are given weekly day of rest, or they are given the compensatory day of rest, and all those things are to be kept in mind, or overtime etc. is to be given into mind. Then in some cases the hospital staff, they were permitted to enter the mines and all that, but now women are permitted to go underground, so that way this also becomes a this thing. Now the one more exemption that has been granted under section 83 is all mines working molding sand have been exempted from all provisions of the act except section 789. 789 से तो exemption दे नहीं सकते, क्योंकि 789 क्या है भाई, आपकी माइंस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वेदर इट इज़ एग्जम्पशन के योग्य है या नहीं, तो इंस्पेक्शन से ही पता चलेगा. तो पावर्स टू इंस्पेक्ट द माइंस. देन सेक्शन 45 प्रेजेंस ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उससे आपको छूट नहीं मिल सकती. 46 एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन जो भी है, एंड चैप्टर 9 पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, इससे भी आपको छूट नहीं मिल सकती है, प्रोवाइडेड दैट डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, मोल्डिंग सैंड की जो है उसमें उन्होंने डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन बोला है डज नॉट एक्सीड 1.5 मीटर, एंड नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड डज नॉट एक्सीड 20, एंड एक्सप्लोजिव्स आर नॉट यूज्ड, and the workings do not extend below superjacent ground. So these are some of the important provisions under the Mines Act, which we should be thorough with, and we can expect a few questions, few MCQs on those. And I think with this much of preparation of the Mines Act, you will be very much able to answer the questions in the MCQs related to any provision of the Mines Act.